ਅੰਦਰ ਗਿਫਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਰੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਸਫਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰੋ, ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਕਾ ਕਿਹਾ ਨਜਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਤੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲੇ? ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਮਾਨ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਆਣਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਂਟ ਤੇ ਸਫਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਰਾ ਝਟਕੇ ਸਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 400 ਵਾਲੀ ਲਾ ਲਓ, 7 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਂਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਊਂਟ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਊਂਟ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਊਂਠਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਫੜੋ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਫੜੋ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਊਂਟ ਦੀ ਕਰਵਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਝਟਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਵਾ ਹੈ ਨੇ। ਐ ਨਾ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੱਠ ਜਾਣ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਹੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬੂਮ ਲੋਡਰ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬੂਮ ਉਹਦਾ ਵਾਵਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਹੋ, ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਜ਼ਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਜਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਨਜਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਲੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੂਮ ਲੋਡਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੂਮ ਲੋਡਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਲੈਮੋਜ਼ੀਨ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ। ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਮੋਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੰਨਸ ਤੇ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੂਮ ਲੋਡਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਬੂਮ ਲੋਡਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਸ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾ। ਬੂਮ ਲੋਡਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਗਨਲ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੈ। ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। आमिर भाई ने सुबह सुबह जो टीका लाया है ना, एक डॉक्टर साहब टीका लांदे सी, मगर आज टीका आमिर साहब ने ला छड़े ਉਹਨੂੰ। ਦਿੰਦੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਗਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਅਸਲ ਨਾ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਗੋ ਖਾ ਦਿਆ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਪਿਛੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟicker ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਦੀਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਗੋ, ਮੇਰੀ ਹਾਦੀਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਗੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਤੇ ਮਜੀਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ
ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਮਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਜੀਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਜੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਮੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਹੈਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤੇ WhatsApp ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਜਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਠੋਕੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਬੈਕਅਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਸੇਵ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੀਮੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਲਾਂ। ਲੱਭੋ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜੀਦਾ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਕਅਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਤੂਨ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਧਰੇ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਮਰ ਭਾਈ? ਕਿੰਨੂੰ? ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਯਕਦਮ। ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। है इश्तिहार नवा पोस्टर, ठीक है। तू जो गाली देगा वही मुझसे सुनेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। साहब कलाम है हजरत मसीह मौत, कैसा कलाम है? मूत्र ले शलवार सानिक ज़ैन जिल्द नंबर ओ ते सफ़ा नंबर ओ। तू जो गाली देगा वही गाली मुझसे सुनेगा। नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ याद करा देने ਸਾਨੂੰ। एक हौली हौली मैं ना सानिक ज़ैन याद करवा रहे हैं एक करके। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰਾ ਨੀ ਭੇਤ ਖੋਲੀ ਦੇ, ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕਦਾਰ ਗੋਲੀ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜੌਨ ਤੇ ਸਟੀਵ ਆ, ਰੱਖ ਕੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੌਨ ਤੇ ਸਟੀਵ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਥੱਲੇ 1122 ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਲਿਖ ਦਵਿਓ ਕਿ हजरत मुसल्ली ਦੀ ਗਿੱਲੀ सलवार। यार रसूलुल्लाह मैं हलाक हो गया, इसका भी पोस्टर बना दें मुझे भी। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮਰਜ਼ਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਨੀਮ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਲਿਖਣੀ, ਉੱਤੇ ਗੁੰਬਦ ਖਜ਼ਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਰਜ਼ਾਈ। ਜਲਦ ਅਜ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੀ ਵਹੀਂ ਪੇ ਖਾਕ ਜਹਾਂ ਕਾ ਖਮੀਰ ਥਾ। ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਲਾ ਦਿਓ ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉੱਤੇ ਗੁੰਬਦ ਖਿਜ਼ਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਜੇ ਕੱਢੋ। ਕੋਈ मिर्जा कादियानी वहां मारा जहां का हमीर था। वाह 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 वाह। ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਣ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਓ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਕਲਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਣ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਜੱਸਸ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਸੈਂਟਰ ਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਦੇਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਈ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਜੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਉਦ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਨੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਜੀ ਲਾਇਆ? ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ।
ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰ ਕਹਿ ਲਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਲਓ ਬਸ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਆਮਰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਉਹ ਚ ਜਦੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਬੜਾਇਆ ਚਲਾ ਖਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਕਰ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਿੰਟ ਕਰੇ ਬੜਾਇਆ ਤਿਆਰਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੱਡਿਆ ਸਮਝੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਮਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਮਤਿਆਜ਼? ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਈਫ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਕਮ ਅਦਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਕਮ ਅਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਿਛਲੀ ਤਲੀਮ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਬੂਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਲੀਮ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰੋ। ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਮੌਸਾ ਭਾਈ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਰੌਣਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ। थैंक यू। तो जो गाली देगा वही गाली मुझसे सुनेगा। हाँ तो नहीं है ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਨਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਲਟਾਉਂਦਾ। ਉਹੀ ਗਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਓਗੇ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੂਤਰਾ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ। ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੋਲ ਛੜੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਗੋਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਹੀ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਹਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੂਰਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਮੁਸਲਮ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਕ ਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇਹ ਅਮਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੈਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹਾਨੀ, ਅੰਦਾਮ ਨਹਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਨਹਾਨੀ ਤਲਕਾਤ ਤੇ ਅੰਦਾਮੇ ਨਿਹਾਨੀ। ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੂ ਔਰ ਖੁਜ਼ੂ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੂ ਹੈ ਖੁਜ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਹਿਸ਼ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਹਮਬਿਸਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹਿਸ਼ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੰਦਾਮੇ ਨਿਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੁਤਫਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੁਤਫਾ ਲਜ਼ਤ ਉਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ
ਪਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਤਫਾ ਪਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਏ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਦਾਮੇ ਨੇ ਹੰਝ ਜਾ ਕੇ ਨੁਤਫਾ ਗਿਰਦਾ, ਇਹ ਪਿਛਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਾਂ ਰੱਖੋ ਗੋਦ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਰੋਕ ਦਵੋ। ਕਲਾਮੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਾਮੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗੋਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਾਮੇ ਨਿਹਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੁਤਫਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਜ਼ਤ ਤੇ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਤੁਣਕੇ ਛੁਣਕੇ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਤਾ ਇਸਤਕਾਮਤ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਏ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਮੇ ਨਿਹਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਥੋਪੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਲਾਮੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਮਹਿਫਲ ਚ, ਜਿਸ ਮਹਿਫਲ ਚ ਕਲਾਮੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਸੂਲullah ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ को ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਸੂਲullah ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, कभी भी नहीं रखोगे मुसलमान साहब। चलो थोड़ा मैं अभी एक बरेलवी ब्राड से क्वेश्चन पूछ के आया हूँ। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर और नाज़िर हैं, वो तो हर उम्मती हाज़िर और की नाज़िर। हर बात तो सुन लो ना, या बाद में भोंकना, आहो अपनी हर बात को वो सुनते भौंकने लगे? हैं, वो नोट कर रहे हैं हर उम्मती ओए की सामने बात लिखे को। तू जो गाली देगा वही गाली और- मुझसे सुनेगा। हाँ, तो ये मैं सुनी? आपको बता रहा हूँ ना, रसूलुल्लाह भौंकने वाला लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया ही? भौंकने वाला लफ्ज क्यों क्योंकि इस्तेमाल? मैं बात कर रहा हूँ, तुम दरमियान में मुझे काट रहे हो, पूरी बात सुनने का हौसला ये पैदा लागे करो। ना मुझे बंदा पता है आपने तुम शॉर्ट भौंकना। टेम्पर हो, तुम में बात सुनने का हौसला नहीं है। ਇਹਦਾ पहले ਜਵਾਬ पूरी ਇਹ बात ਹੁੰਦਾ ਹੈ सुनो, कि पहले मुझे भौंकना- बोलने दो ना, मुझे बोलने दो, बोल फिर लेने दो, बात अमर भाई, हो लफ्ज जाए इस्तेमाल फिर किया है। बात करना। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲਾ ਲੈਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਦਿਓ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਟਾਂਗਾ ਲਾਇਓ। ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈ ਮੇਰੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜੀ। मेरा सर सिर्फ ये सवाल है कि क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे नबी, मेरी जान उन पर कुर्बान हो, क्या हाजिर और नाज़िर है? अच्छा ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ जी, ਬਸ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। बस सर यही। ਜ਼ਾਇਦਮੀਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੌਂਕੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਆ ਮਿਊਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਉਹ ਭੌਂਕੇ ਜੇ, ਇਹ ਉਹ ਭੌਂਕੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। हाँ भाई, मिर्जे कादियानी ने की आख्या है कि जिससे जदू जाइए किसी मजलिस से जाके आखीदा भौंकना, तो उन्हें आख्या पहला कि जो गाली मैं तू मोहम्मद देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम ओए लिया मोहम्मद है, रसूलुल्लाह दा नाम ही ना ले, उन्हां दा नाम ही ना ले, दजाल दे पैरोकारा, ਚੁੱਪ दजाल ਕਰਕੇ दे ਸੁਣ, पैरोकारा। मोहम्मद रसूलुल्लाह दा अपनी गंदी जुबान नाल ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਣ। ਨਾ ਪਾਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਯਾਰ ਮੈਂ- ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਭੌਂਕਣ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਮਿਰਜ਼ੇ ਅਲੈਹਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਸੱਲਮ ਦਜਾਲ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਜ਼ੀਰ ਖੋਲ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਜਾਲ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਗਾਲੀ ਦੇਗਾ ਵਹੀ ਮੁਝਸੇ ਸੁਨੇਗਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਭੌਂਕ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨ ਦੇਣ ਲਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਜੀ ਜਾੜ ਨਾਲ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਭੌਂਕਣ ਭਕਾਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਭੌਂਕਣ ਭਕਾਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਤਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੂਤਰਨ ਵਾਲਿਓ ਮਿਰਜ਼ੋਟਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਾਂਤੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਾਂਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਜਾਲ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਹੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਉਹਨੂੰ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੇਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਤੀ ਦਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੂਤਰ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੂਤਰ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਤਰ,
ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੂਤਰਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਬਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਅੱਗੋਂ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੂਤਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬੀਆ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਤਾ ਹੈ- ਕਾਬਰ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੱਗਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਕਾਬਰ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਬਰਾਂ ਜੀ, ਵੱਲ ਜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੂਤਰੋ ਅੱਗੋ, ਮੂਤਰੋ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤਮੀਜ਼ ਓਏ ਹਰਾਮੀ, ਓਏ ਹਰਾਮੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੁਸੀਂ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਜਾਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨੁਤਫਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੌਂਕਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦਜਾਲ ਵੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ੋਟੇ। जी शमीर साहब, जी क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक बिल्कुल ठाक। समीर साहब आप सुनाएं। ठीक हूँ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। समीर साहब आपका तारुफ क्या है यार? आप कभी कभी ब्राड लगाते हैं तो पता नहीं आप कौन है, मतलब आप मुसलमान हैं कि कादियानी हैं? मुसलमान हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्जा कादियानी पर लाने डालते हैं? मैं तो भगवान राम पर भी लानत नहीं डालता। क्या बोला? नहीं, भगवान राम पे तो लानत नहीं डालनी चाहिए क्योंकि उनके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन मिर्जा कादियानी के बारे में तो कुरान ने कहा ना, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। मिर्जा कज़ाब है कि नहीं है? कहता हूँ लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। तो मिर्जा कज़ाब है कि नहीं है? अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है। उसने नबूवत का दावा किया है, वो सच्चा है कि झूठा है? उन्होंने तो नबूवत का दावा किया है, पता नहीं किया। लाहौरी तो कहते हैं नहीं किया। लाहौरी कहते नहीं किया। हाँ, ये सेठी साहब आ गए, सेठी साहब से पूछ ले, मैं नबूवत का दावा किया मिर्जा कादियानी ने? पूछ ले इनसे। ये साहब की हाल जोड़ सुनाओ की ठीक मसला बड़ा है। समीर साहब कोई गल पूछना चाहते ने, इन्होंने दस्या थोड़ी जी गल। अच्छा सौड़े क्यों पे आए हो यार? जो तू वेखो सौड़े पे आए हो, मैं बिल्कुल रिलैक्स हां। मैं क्या, वो बंदा एक आया है तो मैं उनके बारे जानना चाहना। अगे एक दो बार इन्हां दी बराड़ ते भी गलबात हुई है, अच्छे आदमी ने, माकूल जे बच्चे ने, लेकिन ये गल कोई पूछना चाहते ने तो उन्होंने पता नहीं, तो उन्होंने कन्फ्यूजन दूर कर दियो। मिर्जा कादियानी ने नबूवत दा दावा कीता है कोई नहीं कीता? यार तुसी किड्डे वड्डे पुराने डिबेटर हो ते तुहानू मेरी मदद दी जरूरत पै गई। नहीं, मैं तो उन्हों दा मुनकर हां ना। वो जेड़े ने वो उन्हां दे घर दे को पूछना चाहते ने ना, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਹਿਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। चलो कर लो जी, समीर साहब कर लो, समीर साहब कर लो। नहीं मैं म्यूट लाना। आज हो गया ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। नहीं भाई, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। ਓਏ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌੜੇ ਪੈ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਯਾਰ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। समीर साहब गाल करें ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੱਸੋ यार। समीर साहब बात करें, समीर साहब बात करें। ਲੈ ਬਾਕੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਜਾਓ। ਓਏ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ समीर साहब ना गल करो, समीर साहब ना। फिर मैं एक मिनट बिजी हां, मैं आना वा, मैं सुन रहा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਗੇਅਰ ਲਾ ਲਓ, ਟਾਪ ਗੇਅਰ ਲਾ ਲਓ ਟਰੱਕ ਦਾ। नहीं, मैं ट्रक ਦੇ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਮੀਰ ਭਾਈ। अच्छा जी समीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? ठीक हो? ये आमर नज़ीर साहब ना मेरा बड़ा पुराना असी गुफ्तगू करते रहे हैं, ये आज नहीं, आज 6-7 साल पहले ही ते बड़े उर्दू में बात करें, वो इस्लाम इंडिया तो अच्छा ठीक चलो ठीक है जी जी। तो आमर नज़ीर साहब से मेरी बड़ी पुरानी इस्लाम दुआ है, लेकिन इतना मैंने इनको हाइपर नहीं देखा जितनी आजकल ये हुए हुए, क्योंकि इनके अपने मुसलमान भाई इनके ऊपर कुफर के फतवे, इनको गालियां निकाल रहे हैं, वो हक बात। सवाल ये है कि मिर्जा साहब को हमने क्या मानना है, ये है सवाल। अच्छा ये समीर साहब ने बात की है? समीर साहब ने, वो कहते हैं मुझे नहीं पता मिर्जा साहब का दावा क्या है। अच्छा एक समीर साहब आप इधर मौजूद हैं? जी। तो क्या पूछना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं ऊपर आया था तो ये आमिर नज़ीर साहब ने कहा कि आप मुसलमान हो। मैंने कलमा पढ़ा कि मैं मुसलमान हूँ जी, बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता हूँ, रसूल मानता हूँ, अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ। तो इन्होंने कहा कि आप जब तक मिर्जा साहब पर लानत नहीं भेजोगे। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि कुरान झूठों के ऊपर लानत भेजता है।
लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। यार एक मिनट बीच में क्यों आ वही गए? बता रहा हूँ ना, वो बात पूरी बता रहा हूँ ना कि अगर कुरान जो है ना आप वो बीच में झूठों पे कहेंगे- लानत भेजता है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, और उन्होंने कहा कि मिर्जा कादियानी ने झूठ बोला है नबूवत का अबे दावा सुनो करके। बात। या तो आपने आप बात समीर कर साहब लो। ये कहा है, आपने ये कहा है कि मुझे नहीं पता कि मिर्जा साहब का दावा नबूवत का अच्छा, है इसका या जवाब नहीं अब है, आपने क्योंकि देना या मैंने लाहौरी जो देना है वो नहीं मानते। ये है सवाल। अच्छा नहीं आपने जवाब देना है या मैंने देना है? नहीं, उनका सवाल रखा है, मैंने जवाब तो नहीं रखा। आपने बताना है कि मिर्जा साहब नबी हैं या नहीं। बात सुनो, ये टके टके की बरोटों के ऊपर ना ये नहीं बात करते कि हमने तो जो भाई बात- मिर्जा कादियानी की औकात टके की थी, आपसे ये पूछा है कि मिर्जा नबी था या नहीं, शर्म ये नहीं पूछा है। आई तुम्हें बात करते हुए? शर्म नहीं आती? अबू बकर भाई आराम से बात करें, उनको कर नहीं लें। नहीं आप नज़ीर साहब आराम से बात की थी। अच्छा गल सुन, नहीं कोई नहीं तुहाडे नाल करदा। पहले उनको माजरत करे, पहले उनको ठीक है, माजरत करे। माजरत मुजरत ना कराओ ते तुसी इंज करो, अगर तुमसे करवा रहे हैं, उसने हमारी बराड़ को टके की बराड़ का है, वो टके टुके ना करो, ना करो बराड़ दे उत्ते की ना गल करो। करते? ओहो अब्दुल जब्बार साहब टक्का टुका ना करो, ਤੇ तुसी ਫਿਰ गल ਯਾਰ करो। ਕਿਉਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? नहीं मैं उन्होंने मना करता ना, तुसी गल करो समीर साहब ने, दसो भी मिर्जा साहब ਹੁਣ ने ਵਿੱਚ दावा ਕੋਈ ਬੰਦਾ कीता, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ फैर ਯਾਰ। मार देना, मैनू गोली मार देना। ठीक ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ ਫੈਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ओहो मेरा कहने का मकसद हूं नहीं कोई बोलदा, मार लेकिन दो यार, फजूल। ओ पे पूछना ते अन्नी गल चाहंदा ना बंदा वे मिर्जा साहब ने बहुत दावा कीता कि नहीं कीता, ਅੱਛਾ ਯਾਰ उन्हें झूठा ਗੱਲ सच्चा ਕਰਨ ਦੇ बन ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। जी, सुमीर भाई जी सुमीर भाई की पूछ रहे थे आप बात कर लें, अभी वो आप उर्दू में बात करें। बात ये है, आप सुन रहे हैं समीर भाई? जी जी देखें समीर भाई, बात ये है कि अल्लाह कुरान पाक में जबर किसी के ऊपर नहीं लाता। सही बात। अगर आप प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उनकी शरीयत को मानते हैं, उनको नबी मानते हैं, ओहो ने नबूवत दा दावा पूछे भी कीता है कि नहीं कीता। तो जवाब यार मैंने गल तो पूरी समझा लें। ਤੁਸੀਂ लगे हो ना शुरू करन उथों तफसीर राजी तू। अच्छा मैं जावा फिर मतलब ਤੁਸੀਂ नहीं ओहो करते। भाई हाँ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ यार मैं ਸਾਹਿਬ जानना ਨਬੂਵਤ ਦਾ फिर यार ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌੜੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਯਾਰ ਭਰਾ ਬਣ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਬਰਾੜ ਖੋਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਾਲੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅਬਦੁਲ ਸੁਨੀਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਅਮਰਦੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਹੱਕ ਉਹ ਬਾਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। अच्छा मैं भूल गया था, तबलीग नहीं करनी। ਹਾਂ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਤਾ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਤੇ। अच्छा माजरत यार आप। अच्छा समीर भाई बात ये है, फिर उर्दू की गल करनी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। समीर भाई आप सुन रहे? जी जी हमारा मैं जमात अहमदी से ताल्लुक़ रखता हूँ। इन लुपाइयों का ये इतराज़ है कि हम अलैहिस्सलाम ना कहें। चलो इनका ये जबर कर रहे हैं हमारे ऊपर। हम मुझे अभी इल्हामन बताया गया है कि मिर्जाई नहीं बताएगा कि मिर्जा नबी था या नहीं। बताएंगे अमन अजीज साहब अब एक फिर बोल पिया ना बंदा विच यार मैं चुप कराना पिया, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਬਤਾ ਦਿਓ। मैं अमर ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ मेरी ਕੀਤਾ। पुरानी यारी है, बस गल खत्म हो गई। ਜਵਾਬ अच्छा ਸਾਹਿਬ मैं 2 मिनट तक हो गए जी, हो गए थे, उन्होंने जवाब कभी भी नहीं देना। यार समीर साहब ये जवाब ही नहीं देते आपको, हम क्या करें? इनसे पूछ लो कि भाई मिर्जा साहब नबूवत का दावा किया कि नहीं किया, इसमें हमारा क्या कसूर है? वो लोग तो कहते हैं कि किया है, क्या कह रहा था? ये लोग तो कहते हैं कि किया है नबूवत। किया है, ठीक है, हम भी कहते हैं किया है। तो आप उस दावे को सच्चा मानते हैं कि झूठा मानते हैं? को बात क्या है कि मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानता हूँ। आखिरी नबी मानते हैं, तो फिर मिर्जा कादियानी का जो नबूवत का दावा है फिर उसको तो सच्चा नहीं मानते ना, झूठा मानते हैं ना। देखिए अगर मैं मानता तो मैं अहमदी होता ना। नहीं हमें यही तो हम पूछ रहे हैं कि अगर आप मिर्जा कादियानी के उसके दावे को झूठा मानते हैं फिर तो आप अहमदी नहीं हैं, वरना आप अहमदी हैं। अब हमें तो पता नहीं है कि आप अहमदी हैं या नहीं हैं, यही तो मैंने सवाल किया आपसे मेरे भाई कि आप अहमदी हैं या मुसलमान हैं, इसी से तो बात छिड़ी। देखो बात क्या है कि अगर मैं यहूद होता तो मैं कहता कि मैं यहूद हूँ, अगर हिंदू होता तो मैं कहता कि मैं हिंदू हूँ। तो मैं जब बोल रहा हूँ आपको कि मैं अहमदी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखता और मैं मुसलमान असल बात यह है समीर भाई, बात यह है
کہ यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोग आके अपना वो तारुफ नहीं करवाते जो असल तारुफ होता है, लोग बताते कुछ और हैं होते कुछ और। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपसे हमारी ज़्यादा वाकफियत नहीं है, आप अच्छे आदमी मालूम होते हैं, तो आप हमारी थोड़ी मदद कर दें और बता दें कि आप मिर्ज़ा कादियानी को झूठा मानते हैं या सच्चा मानते हैं, ताकि हमें आपकी बात पर अन्य व एतबार करने की बजाय हम उनके देख बारे लें में कि तो मैं देखो बात क्या है कि मिर्जा साहब के बारे में उतना ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे, तो अगर जानकारी ज्यादा ना हो वालेकुम तो उस सलाम। पर म्यूट रखो जी, म्यूट रखो। क्या खामखा एक बेगुनाह नहीं आप ज्यादा जानकारी नहीं रखते तो हमने कौन सा पूछा है कि रूहानी खजाइन की कितनी जिल्दें हैं, मलफूजात की कितनी जिल्दें हैं, इश्तिहारात कितने लिखे हुए हैं, ये तो नहीं हमने पूछा। हमने तो यही पूछा कि जो उन्होंने नबूवत का दावा किया है, जिसको आपके सामने सारा दिन जमात अहमदिया यहाँ ब्रॉडें लगा के कहती है कि नबूवत जारी है और मिर्ज़ा कादियानी का नाम लेके अलैहिस्सलाम कहती है, आप उनको उनके दावे में सच्चा जानते हैं या झूठा जानते हैं? हमने भी तो आसान सी छोटी सी बात पूछी है वाकफियत हासिल करने के लिए, कोई गलत बात तो नहीं कही हमने भाईजान। हाँ, वो लोग जो कहते हैं कि नबूवत जारी है, वो सूरे आराफ आयत 35 की तावील करते हैं, जैसे कि हम लोग तावील करते हैं उसी तरह वो भी तावील। मैंने ये नहीं पूछा कि वो दलील क्या देते हैं, मुझे उनकी दलीलें मैंने देखी हुई हैं। सूरा आराफ की आयत का मैं जवाब दूंगा, वो कर लेंगे बात। उनकी दलीलें हमने तोड़ के उनके मुंह में डाल दी हैं, वो झूठ बोलते हैं, कुरान पर झूठ बोलते हैं। नहीं, बात क्या है कि आप इस तरफ तावील करते हो, वो उस तरफ तावील करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, हम तवील जो करते हैं ना, हम सिर्फ उस कलाम की तवील करते हैं जिसके ज़ाहिरी मानी मुराद लेने मुमकिन नहीं होते। हम इस तरह की बेहयाई वाली तवील नहीं करते। उसको छोड़ के फिलहाल आप भी ऐसा करें ना, अब्दुल जब्बार की तरह हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। आप बताएं कि उसके दावा नबूवत में आप उसको सच्चा मानते हैं या झूठा मानते हैं? मैंने तो जवाब दे दिया आपको कि मैं नहीं मानता किसी को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, आप किसी को नहीं मानते, तो फिर उसका जो दावा है या वो सच्चा है या झूठा है, आप क्या मानते हैं? उनके ऊपर ज्यादा तहकीक नहीं की मैंने, इसलिए झूठा नहीं कह सकता मैं। और मतलब सच्चा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है आपकी नज़र में। अगर आप तहकीक करें, गौर व फिक्र करें और आपको वहां पर कोई दलील नजर आए तो आप उसको सच्चा भी मानने के लिए तैयार है ना? अगर कुरान उनका साथ दे रहा हो तो मैं भी उनका साथ हूँ। हाँ, यानी कुरान से कोई ऐसे मानी निकाल लिए जाएं जिनसे साबित हो कि वो नबूवत के दावे में अपने में झूठा नहीं है, तो आप उसको सच्चा मान लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। सही बात। तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने माना नहीं है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार हैं, मानना चाह रहे हैं। तैयार मतलब दलील होगा तो मान लेंगे। हाँ, तहकीक करना तो देखो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हमें कि यार बात का तहकीक करो। अगर झूठा इंसान भी आपके पास कोई बात लावे तो पर तहकीक करना चाहिए। हाँ, तो अगर हम मिर्ज़ा कादियानी का झूठ आपकी आंखों के सामने रख दें तो आप मान लेंगे कि ये तो झूठा शख्स है, इसकी फिर किसी बात पर एतबार नहीं किया जाएगा, ऐसा ही है? नहीं, आप तो उसकी मुखालिफ जमात से हो, तो आप जो भी बोलोगे उसके खिलाफ ही बात करोगे। नहीं, हम तो उसको खिलाफ हैं तो खिलाफ ही बोलेंगे, लेकिन कोई दलील तो पेश करेंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो हमारे सामने दलील पेश करेंगे तो आप मान लेंगे, तो अगर मैं दलील पेश करूं तो आप नहीं मानेंगे, कहेंगे कि तुम तो मुखालिफ हो। नहीं, मैं उनकी भी नहीं मानता, आपकी भी नहीं मानता, मैं अपनी तरफ से तहकीक करता हूँ हर चीज़ पर। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपके सामने अगर मिर्ज़ा कादियानी का झूठा होना साबित कर दिया जाए कि वो झूठा शख्स था, झूठ बोलता था, अपनी किताबों में झूठ बोल कर गया है, तो आप उसको झूठा मान लेंगे, फिर तो उसके किसी तावील, किसी तहरीफ, किसी तहरीर को नहीं मानेंगे ना, फिर तो कहेंगे कि ये झूठा आदमी है। जी, ये हाँ, सही बात है आपने। ये सही बात। तो ये है जेंटलमैन बात। आपके सामने हम मिर्ज़ा कादियानी की 2-3 बातें रखते हैं, आप उनको देखकर आप गौर व फिक्र खुद करके बताएं कि क्या इस शख्स ने झूठ बोला है या नहीं बोला। अगर ये झूठ ना हुआ फिर तो आप इस पे गौर करना, लेकिन अगर साबित हो जाए कि इसने झूठ बोला हुआ है और आमदन झूठ बोला हुआ है, जानबूझकर झूठ बोला हुआ है, फिर तो ऐसे शख्स की बात की वैल्यू ही खत्म होगी ना।
फिर तो हमने ठीक है। मानना ही नहीं है, ठीक है ना जी। ठीक है, बिल्कुल। अभी मैं पेश करता हूँ, 1 सेकंड होल्ड रखें। चुप कर पुत्रा की कहंदा है, चुप कर पुत्रा नी पेट खोली दे, लीडर नहीं इत्थे हकदार गोली दे। अच्छा जी, आपके पास कोई एक्सेस है उनकी वेबसाइट की, किताब उनकी कोई उनकी वेबसाइट से डायरेक्ट खोल सकते हैं आप समीर भाई? मेरा तो देखो अभी मैं नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता मैं। आप कहाँ पर हैं अभी, इंडिया में हैं कि बाहर हैं? नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। ऑस्ट्रेलिया। आप ऑस्ट्रेलिया में तो खुल जाती वेबसाइट उनकी। खुल जाती है, सही बात है। देखो बात क्या है कि अभी पीछे जाना होगा ना मेरे को, फिर वो ड्रॉप हो जाऊंगा मैं। अच्छा, यानी आपकी आंखों के सामने लगा दिया जाए तो फिर आप देख लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, ओके हो गया। आमिर भाई जरा दो भाई है ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜੇ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਨ ਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਲੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਈਕੋ ਲੰਗਰਾ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई तारफ करा दो। भाई वलीद मोहम्मद वलीद मेरा नाम है, मैं मैनचेस्टर से ताल्लुक़ रखता हूँ। कहाँ रहते हैं? मैनचेस्टर, यूके मैनचेस्टर। यूके मैनचेस्टर। हाँ जी। जी ठीक हो गया। और फिका के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। चलने एक सेकंड, यस्मीर भाई की गुफ्तगू खत्म होती है तो आपके साथ एक छोटी सी बात करनी थी, क्योंकि दूसरे भाई बड़ा मेंशन कर रहे थे। जी जी मिर्जा साहब करके कह रहे थे बार बार, और ये भी साथ में कह रहे थे कि मैं नहीं मानता हूँ। तो बस मैंने ये आगे बोलना था, भाई आप नहीं मानते तो साहब क्यों कह रहे हैं आप उन्हें, या उसे, या वो जो भी कह लो। जी 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 बस इसलिए मैंने आया था। मैंने कहा भाई तो कह रहे थे मैं नहीं मानता, मेरी बात लेकिन सुनिए। बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट दे रहे थे। नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट। मतलब अगर नहीं मानता तो मैं क्या कहूँ, मैं कुत्ता कहूँ उसको? बोलो कि मैं नहीं साहब क्या हो गया? जवाब मिलेगा। एक सेकंड वलीद साहब, आप मुझसे बात बात करें है। प्लीज। समीर साहब मुझसे बात करने दें, मुझसे बात करने। जी जी हाँ वलीद साहब, यानी कि कोई भी पैगाम जो हक का पैगाम होता है ना, उसको मसलहत के तहत वो अगले बंदे तक पहुंचाना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जब आप किसी को जाके डायरेक्टली उसकी ज़ात या उसके किसी भी ऐसे मनसब के ऊपर बात करेंगे तो वो असरअंदाज नहीं होगी। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हक पहुंचाना, जो हम समझते हैं, बल्कि समझते नहीं है ही हक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम और उनकी जात अक़दस की तलीम, जो भी उनका जो पैगाम है वो पहुंचाना। यानी कि एक हमने सिर्फ एक पहलू पकड़ा हुआ है, वो है खत्म नबूवत। तो उसको पहुंचाने के लिए मसलहत की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं, अदरवाइज हम मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को लानती कज़्ज़ाब दज्जाल मानते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान के कहते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बस मेरे इतनी बात करनी थी मैंने। जी जी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं आप किसी और को मौका दूंगा आगे आके बात। जी ठीक होगा। जी जज साहब, आप माइक को लग रहा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। आप सुनाए, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हुक्म करें। जी मेरा नाम मोहम्मद आजम नागरा है। जी जी इधर ओमान में रहता हूँ मैं। माशाल्लाह। फ़िक़ा के लिहाज से मेरा तल्लुक़ जो है ना अहले सुन्नत वल जमात से है। माशाल्लाह जी। तो मैं नज़ीर भाई को एक बात बोलना चाहता हूँ जी जी कि अहमदी हम है, ये कादियानी है, और कादियानियों पे तो क़यामत लानत भेजते रहेंगे हम इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी है। लानत का तो हकदार वो उसी वक्त हो गया था जब उसने नबूवत का दावा किया था। लानत का तो कौन हकदार वो उसी कादियानी है? वक्त। मैं कादियानी हूँ, आप कह रहे नहीं हैं नहीं नहीं मैं समीर कादियानी? साहब, आपसे नहीं बात हो रही, वो आमिर भाई को कह रहे हैं, नजीर आमिर को कह रहे हैं। ठीक है, लानत का हकदार वो तो उसी मेहरबानी होगी अगर अहमदी की जगह जो है ना कादियानी का लफ्ज इस्तेमाल कर लें तो। आजम नागरा यार साहब आप सारे भाई हमें, मतलब हमें आप तबलीग करने आए हैं, सारे हमें बताने लगे हैं कि हमने कैसे बात करनी है, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं इस्तेमाल करना है। सारे हमें यार अब मत देने आ गए हैं।
आप ऐसा करें कि आप अपने अपने तौर पर जो आपको सही लगता है आप ऐसे करें, हमें अपने तौर पर बात करने दें। जी भाई, जी आपको मैंने आमिर भाई जो ने बात करनी थी मैंने कर दी है। जी आपकी राय का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह वो जब होते हैं ना, हम बैठे होते हैं, जब अपना यानी कि जो होता है तो हम उसको जैसे जिस तरह मुहातब करना होता है ना उसी तरह मुहातब करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपकी राय का। अगर जी ठीक है, किसी और को मौका दें प्लीज़। शुक्रिया जी। चिश्ती साहब किधर गए हैं जी? जी चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर हुक्म करें। जी मैं एक आदमी की वो सुन रहा था, वो जो कबल पहले यहाँ पर बैठे थे चले गए हैं, तो मैं भाई साहब बड़े प्यारे अंदाज के साथ बता रहे थे, उनसे पूछ रहे थे, वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे जी। और जो अभी आप इनसे जवाब तलब कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे सबूत चाहिए कि वो कादियानी ने नबूवत का ऐलान किया या नहीं किया। ये कह रहे हैं मुझे शक पर है, अगर कुरान दलील दे तो मैं मान लूंगा। वो कोशिश कर रहे हैं जी इनका शक दूर करने की, टेंशन ना लें। चिश्ती साहब मगर यहाँ पर इस्लाम उस चीज का नाम है, हजूर की खत्म नबूवत का शक करना भी कुफर है। बेशक 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 हमारा नजरिया है। मैंने बुखारी शरीफ 3 साल पढ़ाई है, मैंने वो हदीस पढ़ी है कि जिसके अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया है कि नबूवत करने वाला भी काफिर है, नबूवत का दावा करने वाला भी काफिर है, उससे दलील मांगने वाला भी काफिर है, उसका सबूत देने वाला भी काफिर है, उसकी शहादत करने वाला भी काफिर है। तो इसका मतलब हम सब यहाँ पर काफिर हो गए हैं। ये दलील जी देने वाला नहीं, हजूर कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मैं भाई को इतनी भी बयान दे रहा हूँ, अल्लाह सलामत रखे। चिश्ती साहब सॉरी मादरत, आप बेहतर ये होगा कि आप हमसे मुखातब हैं और जो चीज़ आपने ये बयान किया मेरे ख्याल से ये जनाब अब्बास से मरवी है ये रवायत। बेशक ऐसी बेशक ऐसी जी जी बिल्कुल सोनी बात है। हाँ जी बिल्कुल। तो अल्लाह आपको सलामत रखे और इनको बेनकाब करना ये जहाद है। बहुत शुक्रिया। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त लेता हूँ। भाई नाज़ीर भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके के साथ ये बात कर रहे हैं। अल्लाह इनको सदा सलामत रखे। आमीन 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 आमीन। बस ये इनकी ज़रूरत है हमें। नहीं बहुत मैंने इनको बड़ा पसंद किया। यकीन कि मैं नीचे बैठ के सुन रहा था, बहुत आला किस्म के साथ। देखे ना कि अंदाज भी, गुफ्तगू, तरीकाकार भी। हम लोग मेंबर पर बैठने वाले हैं तो मगर हाँ कि अगर यहाँ पर दलील की बात आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की आयात ही ऐसी पढ़ेंगे कि यहाँ सारा कुछ का खात्मा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हजूर खातम नबीयीन थे या नहीं। अच्छा चिश्ती साहब मादरत के साथ आमिर भाई ने हवाला लगा दिया मिर्ज़ा कादियानी की किताब से, तो उनको ज़रा बात करने देंगे, सो प्लीज़। हाँ भाई समीर साहब आवाज़ आ रही है? आमिर भाई एकदम माइक म्यूट कर लो एक आईडी पे। ओके हो गया हूँ ठीक। जी जी हूँ बेहतर। समीर साहब आप ये पढ़ सकते हैं जो कुछ लिखा हुआ है सामने? पढ़ सकता हूँ मैं। हाँ दर हकीकत ये आजिज़ मिन जानिब अल्लाह क्योंकि खुदा ताला एक मुफ्तरी की पेशगोई को जो एक पता नहीं यार मैं पढ़ नहीं सकता इसको, छोटा छोटा है ना वो। आप खुद पढ़ दे। हाँ हाँ यकीन करेंगे फिर। मैंने समझा मेरा माइक अनम्यूट है तो मेरा माइक म्यूट था, माजरत भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऊपर से नहीं पढ़ा जा रहा, आखिरी 2 लाइनें मैं पढ़ने लगा हूँ, ज़रा ध्यान रखें आखिरी लाइनों पर। खुदा ताला साफ फरमाता है इन अल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कज़्ज़ाब।
सोच कर देखो कि उसके यही माने हैं कि जो शख्स अपने दावे में कज़्ज़ाब हो, काज़िब हो, उसकी पेशगोई हरगिज़ पूरी नहीं होती। ठीक है, अभी आपके सामने मिर्ज़ा साहब के दावे की सच्चाई या किज़ब सामने आने लगा है, आपकी आंखों के सामने उन्होंने एक असूल पेश कर दिया है, आपने सुन लिया ये असूल कि जो बंदा एक दावा करता है, नबूवत का दावा करता है, अगर वो अपने दावे में काज़िब है तो उसकी पेशगोई हरगिज़ पूरी नहीं होती। ठीक, ये ठीक होगी बात? जी ये मिर्ज़ा साहब की अपनी ही लिखी हुई बात है। सही बात। अब आप आगे देखना जरा, एक सेकंड यार। तो इसमें क्या इख्तिलाफ की बात है? मैं नहीं, इसमें तो कोई इख्तलाफ है ही नहीं, मैं तो इससे मुत्तफिक हूँ। अभी देखते हैं, एक सेकंड, जल्दी ना करें मेरे भाई, जल्दी ना करें। मुझे, मैं ना टेबल कुर्सी रख के तो वो नहीं कर रहा, मैं वो गाड़ी है उस पे वॉशिंग पे लगी हुई है, तो मुझे मौका दे दें कि मैं बात पूरी कर लूँ बस। अब आप ये देखें, ये है मिर्ज़ा कादियानी के अपने हाथ की तहरीर, जिसमें वो कहता है कि तकरीबन 17 या 18 साल पहले का वाक़या है कि मैं एक दफ़ा शेख मोहम्मद हुसैन बटालवी के पास गया था। 18 बरस के करीब अरसा गुजर गया है कि मुझे किसी तकरीब से मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी जो एडिटर हैं रसाला शाह तो सुन्ना के, उनके पास जाने का इत्तफाक हुआ। उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि आजकल कोई नया इल्हाम हुआ है, तो मैंने कहा कि ये इल्हाम हुआ है जिसको मैंने कई अपने मुखलिसों के सामने भी बयान किया है। और वो क्या इल्हाम है? वो ये इल्हाम है बिक्रम व सैयबुन, जिसके ये मानी हैं कि एक सेकंड, मुझे दूसरी ऐनक लगा लेने दे यार। कोई पढ़ सकता है बंदा और जिसके ये मानी, मैं पढ़ जिसके देता क्या हूँ। मानी लिखे हुए हैं? बिक्रम व सैयबुन, जिसके ये मानी इनके आगे और नियत हर एक के आगे मैंने जाहिर किए कि खुदा ताला का इरादा है कि वो औरतें मेरे निकाह में लाए, दो औरतें मेरे निकाह में लाएगा, एक बिकर होगी और दूसरी बेवा। हाँ, बिकर का मतलब कवारी होता है। समीर साहब वो कहता है कि 2 औरतें मेरे निकाह में आएंगी, एक बिकर होगी और एक बेवा होगी। ठीक है जी। अगर मिर्जा कादियानी की जिंदगी में ये 2 औरतें ना आई हों तो पेशगोई झूठी साबित हो गई। हाँ, अगर ना आई हो तो से 1 मिनट, तो उन पर एक इल्हाम हुआ था कि मेरी जिंदगी में 2 औरतें आएंगे, जो एक क्या होगा? एक बेवा होगी, एक कवारी होगी। अच्छा, तो ये इल्हाम हुआ था उन पर? इल्हाम हुआ था बिक्रम व सैयबुन। अच्छा, तो ये फिर हुआ या नहीं हुआ? यही तो हम चेक करने लगे हैं ना। अगर मिर्जा कादियानी की जिंदगी में किसी बेवा से कभी निकाह हुआ हो और एक कवारी भी आई हो, कवारी से तो हुआ है, कवारी तो 2 से हुआ ना, 2 शादियां उसने की, दोनों कवारियां थी। हुरमत बीबी से निकाह किया था, वो भी कवारी थी। फिर नुसरत जहां बेगम से निकाह किया था, वो भी कवारी थी। उनसे निकाह होने के बाद उसने ये इल्हाम बयान किया। चलें उसको छोड़ दें, कवारी को छोड़ ही दें, हो गई, पहले ही 2 कवारियों से निकाह हो गया था। बेवा से निकाह उसकी जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ। अगर किसी बेवा से उसका निकाह हुआ हो तो फिर उसकी ये पेशगोई सच्ची माननी पड़ेगी। अगर नहीं हुआ तो ये पेशगोई झूठी होगी कि नहीं होगी? हाँ, ऐसे ही तो, हाँ ऐसे ही, बिल्कुल। हाँ, सही बात। तो जिसकी पेशगोई झूठी हो उसके बारे में उसने क्या लिखा है? खुद उसने ये कहा है कि जो अपने दावे में काजिब होता है उसकी पेशगोई कभी पूरी नहीं होती। ये देख लें उसके अल्फाज, जो शख्स अपने दावे में काजिब हो उसकी पेशगोई हरगिज पूरी नहीं होती। कहां से? इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कज़्ज़ाब, यानी जो कज़्ज़ाब है, मुसरिफ है, उसको अल्लाह हदायत नहीं देता। ये तर्जमा है, लेकिन उसने उसकी ये तफसीर की है कि जो बंदा अपने दावे में काजिब हो उसकी पेशगोई पूरी नहीं हो सकती। लो जी, पेशगोई आपके सामने रख दी है मैंने भाईजान। अगर आप किसी कादियानी से पूछ के आओ कि उसका किसी बेवा से जिंदगी में निकाह हुआ है तो आके मुझसे मुंह मांगा इनाम लेना, आपने मुंह मांगा।
अच्छा, तो ये बात है। हाँ, हाँ, तो जब किसी बेवा से निकाह नहीं हुआ तो वो अपने दावे में झूठा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। अब आप उसको झूठा कहेंगे कि सच्चा कहेंगे दावे में? अगर ऐसी बात है जिस तरह आप बता रहे हो तो वो झूठे थे। झूठा आदमी, झूठा आदमी। आप इसको रिकॉर्ड कर लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अभी बेशक यहाँ से उतर कर चले जाएं, मिर्जाइयों की ब्राडें लगी हुई हैं, आप उनसे पूछें कि किस बेवा से मिर्जा कादियानी का सारी जिंदगी में निकाह हुआ है। अगर वो पेश कर दें तो हम यहीं बैठे हैं, आकर मुझसे मुंह मांगा इनाम ले लें। अगर अच्छा, वो ये कौन सी सफ़ा है? रूहानी खजाइन, ये 15वीं जिल्द का ऊपर सफ़ा लिखा हुआ है। अबू बकर भाई बताना यार, नजफ भाई 201 सफ़ा है शायद। हाँ, 201 सफ़ा है। तरियाकुल कुलूब किताब का नाम है। किताब का नाम तरियाकुल कुलूब है, 15वीं जिल्द है रूहानी खजाइन की, 201 सफ़ा है। उनको पूछो भाई, दूसरी का भी वाला दे दे जी, वो पहले तो वो वाला पेश करो। हाँ, नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं, वो तो इन्होंने पढ़ लिया ना, वो तो मैं दोबारा लगा देता हूँ, उसका लेना है तो ले लें। वो एक असूल उसने बयान कर दिया है। क्या किताब का नाम क्या कहा आपने? किताब का नाम क्या? तरियाकुल कुलूब लिखा था पहले। तरियाकुल कुलूब। सही है। तो ये जो है, ये है रूहानी खजाइन की 5वीं जिल्द आईना कमालत इस्लाम, इसका ये 323 सफ़ा है। इसमें उसने ये बात लिखी है कि जो शख्स अपने दावे में काजिब होगा उसकी पेशगोई कभी पूरी नहीं होती। अच्छा, एक मिनट, ये कौन सी किताब है? 5वीं जिल्द है रूहानी खजाइन की, सफ़ा 323 है गलबन। क्या लिखा है नजफ? सफ़ा 323 और 321, 322। 322 और 323 के दरमियान में एक लाइन उसकी, एक लाइन उसकी। अच्छा, रूहानी खजाइन जिल्द 5वां है ना? हाँ हाँ, सफ़ा 322-23। आईना कमालत इस्लाम। आईना कमालत इस्लाम। अच्छा, किताब का नाम आईना कमालत इस्लाम। रूहानी खजाइन उसका सेट है ना किताबों का, उसका वो जिल्द का नंबर है 5। तो फिर अगर इस तरह, तो फिर वो अहमदी मुसलमान क्या कहते हैं इसके बारे में? आप जाकर पूछ लें उनसे, आपने तो अपना फैसला करना, उनको छोड़ें। वो तो झूठे हैं, वो इस पर पंचर लगाते हैं, कुछ का कुछ पंचर लगाते हैं, मानते नहीं हैं। आपने अपना फैसला करना है कि जो शख्स अपने दावे में झूठा है उसकी पेशगोई पूरी नहीं हो सकती। उसने पेशगोई आपके सामने की है कि मेरा एक बेवा से और एक कवारी से निकाह होगा। बताएं किस बेवा से निकाह हुआ? कभी भी नहीं हुआ। कुछ सही बात है। अगर उन्होंने पेशन गोई की थी और उन्हीं के उसूल के मुताबिक जिस जो गलत इंसान हो उसकी पेशन गोई सच नहीं होता, तो फिर अगर गलत नहीं, काज़ब फिर उनका पेशन गोई सच नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर तो सवाल बनता है। तो काजिब कहना पड़ेगा, काजिब कहना पड़ेगा। आपको मैंने मजबूर नहीं किया कि आप जरूर उसको कजाब कहें, लेकिन आपसे मैंने सवाल किया है कि क्या ऐसे शख्स को उसके दावे में कजाब कहना पड़ेगा या सच्चा कहना पड़ेगा? कजाब कहना पड़ेगा, क्योंकि उसका अपना असूल है कि भाई अगर झूठा है दावे में तो वो पेशगोई पूरी नहीं हो सकती। और पेशगोई आपके सामने है। वो कहता है एक कवारी से मेरा निकाह होना है, एक बेवा से। अब बेवा से तो निकाह सारी जिंदगी नहीं हुआ, किसी भी बेवा से नहीं हुआ। किसी मखसूस बेवा को उसने नाम नहीं लिखा। हिंदुस्तान में कई बेवाएं थीं, अगर वो करना चाहता या अल्लाह ताला की तरफ से उस पर कोई रहमत होती, नरमी होती, तो वो किसी बेवा से कर लेता निकाह। ज़रूरी तो नहीं होता ना कि भाई मखसूस बेवा से करना, किसी भी बेवा से निकाह हो सकता। लेकिन अगर एक बंदा है, बकौल इनके वो 73-74 साल ज़िंदगी गुजार के मरता है और फिर भी किसी बेवा से निकाह नहीं होता। हिंदुस्तान में इतनी बेवाएं हैं। आप हिंदुस्तान में है ना इस वक्त? नो सॉरी, पीछे से हिंदुस्तान से, इंडिया में। जी जी, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में किसी बेवा से निकाह करना किसी आदमी के लिए मुश्किल है, जो अमीर आदमी हो, जिसके पास लाखों रुपया हो। नहीं, उतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल नहीं है। एक गरीब बेवा से आप निकाह कर सकते हैं, उसको नान नफके का खर्चा दें, उसको घर बना के दें, वो खुशी से आपसे निकाह कर लेगी। पहले उसका खामद फोत हो गया, वो शुक्र करेगी मुझे सहारा मिल गया। तो इसने सारी जिंदगी किसी बेवा से इसका निकाह नहीं हुआ, तो ये झूठा निकला।
ये एक लानती कुत्ता नीचे भौंक रहा है, इसको मैं म्यूट करने लगा हूँ। जब ये झूठे पड़ते हैं फिर नबी पाक पर भौंकते हैं, ये है मसला इनका। नबी पर भोगते हैं। ये देख लें, इसका नॉलेज वाले का मैसेज पढ़ें जरा, मैं इसको म्यूट करने लगा हूँ। इस हरामी का मैसेज पढ़ें। नहीं हाइड हो गए, कमेंट ही हाइड हो गए। नहीं मनो नजर आ रहे हैं। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾ ਦੇ। ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾਈਏ। अच्छा तो सबके ये जो सर 2 सेकंड दे दो, गाल मुकम्मल होने दो। जब इनके सामने मिर्जा कादियानी झूठा साबित होता है, वो नबी पाक पर भौंकना शुरू कर देते। वो कह रहा है तुमने नबी पाक को माज़अल्लाह ऐसा साबित कर दिया, ये वो लानती भौंक रहा है। ये इनको दफा करें। आप अपना बताएं कि आपकी नजर में ये शख्स अगर इसका किसी बेवा से निकाह नहीं हुआ तो झूठा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। हाँ बस इतनी बात है। आप ऐसा करें समीर भाई, हम यहाँ बैठे हैं, आप जाएं किसी ब्रॉड पर, ये स्क्रीनशॉट लेके जाएं, पूछ कर आएं। जब आप आएं वापस हमें बताएं कि आप इसको कज़ाब कहते हैं या नहीं कहते। हमारी आगे बात तब चलेगी जब आप हमें बताएंगे कि आप इसको कज़ाब कहते हैं या सच्चा कहते हैं, बस। क्योंकि इस तरह तो फायदा तो है ना। हाँ सैफी साहब से पूछ के आता हूँ। पूछ के हम अभी बैठे यहीं पे बैठे इंशाल्लाह, कोई अब हमें जल्दी नहीं। जज़ाकल्लाह। इतनी देर में ये नए साथी आए, इनसे बात करें भाई। नजफ साहब कौन सा? जी अमर भाई। अतरा राजपूत साहब माइकोलॉजी। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं? ठीक हैं जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। माजरत, मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो भाई ने कॉल पे लिया, मैं बैठ गया। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मैं सुन रहा हूँ, मैं अपने इल्म में इजाफा कर रहा हूँ। तो आप किसी और से लें टाइम, उनसे बातचीत करें इंशाल्लाह। सुन रहा हूँ, किसी को बिठाना भी हो तो आप बिठा सकते हैं। मैं रैंडम बंदे उठा रहा हूँ और उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं। इन मर्जियों से तो बहुत सारी गुफ्तगू हो गई है, तो पहले ये तो जी इन मर्जियों से तो उलझते हुए हमें तकरीबन कोई 6 साल हो गया इस टिकटॉक के प्लेटफार्म पे। ये जो लोग हैं ना, कैसी उलझन है इनके पास, जब इनके पास कोई दलील नहीं होती, कोई सबूत नहीं होता, कुछ नहीं होता ना, तो फिर ये आते हैं बकवासियात पे। फिर ये जनाब जी वो बहुत दूर तक निकलते हैं। शायद आपने देखा या नहीं देखा होगा, हमारी ब्रांडें बहुत अरसा से चलती रही हैं इनके पीछे। फिर इन्होंने ये काम शुरू किया कि इन्होंने फिर जनाब जी माज़अल्लाह हमारे नबी पे गुस्ताखियाँ करनी शुरू की। फिर इन्होंने जनाब वो कुछ सिख कम्यूनिटी को, हिंदू कम्यूनिटी को साथ लगा के जनाब वो हम पे इस तरह के वार करने शुरू किए कि जिससे आप ये अंदाज़ा कर लो कि हम डर गए कि यार अब ये मामला जो है ना वो हमारे दीन को टारगेट करने, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करने, हमारे ईमान को टारगेट करने पे आ गए हैं। तो अब इनसे बहसना फजूल है। तो फिर ये इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जी ठीक हो गया जी। क्लीनर साहब माइक खोलें जी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। जी सर। प्यारे भाई सुनाएं, सबका क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तारफ करा दें अपना करा। जी भाई मैं मूसा जर्मन से भाई। जी सर। फिका कोई भी नहीं ढूंढ रहा हूँ भाई। फिका कोई भी नहीं मतलब है ही कोई नहीं है भाई, ढूंढ मुसलमान है। मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुसलमान सबसे अच्छी पहचान है कि फिका सबसे अच्छी पहचान है? मुसलमान। अच्छा चले माशाल्लाह, सही हो गया। कोई सवाल रखें? सवाल मेरा ये है कि अगर आप जवाब दें तो अच्छे तरीके से सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से बहुत प्यारा जवाब मिलेगा। बड़ा प्यारा सवाल करूंगा आपसे। जी मेरा सवाल ये है कि क्या आपका अल्लाह ताला के साथ तल्लक है? जी आमिर भाई। आमिर भाई मौजूद है? आमिर भाई की बात कर रहे हैं, वो भाई मसरूफ होंगे। नहीं मसरूफियत की कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छा जवाब देते हैं। हमारे आलम में मेरे उस्ताद हैं, हमारे उस्ताद हैं। तो आमिर साहब उस्ताद हैं माशाल्लाह जी, बहुत प्यारे उस्ताद हैं। पता चल गया कि आप भी अल्लाह के साथ जो तल्लक ढूंढ रहे हैं, पता चल गया। आमिर भाई मौजूद हो? गलती की माजरत भाई। आमिर भाई नहीं कोई टेंशन नहीं सर, की हो गया? बड़े अच्छे तरीके सवाल किया और अच्छे तरीके बोल रहे हो।
ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਰ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਹਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ।